ऑल राइट, हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस एमबीए पॉडकास्ट। मेरे साथ आज हैं आईएमआई कोलकाता के स्टूडेंट्स। इनकी फाइनल प्लेसमेंट लग चुकी है। इनके नाम के नीचे आप देखोगे कौन सी कंपनी में ये प्लेस हुए हैं। सो ऋषभ इज इन फेडरल, जयदीप इज इन आरके, श्रेया हैज मेड इट टू आईडीबीआई बैंक एंड शी इज गोइंग टू बी ज्वाइनिंग एज, मेरे ख्याल से, एज असिस्टेंट मैनेजर। सो वेलकम टू दिस सेशन। बाय द वे, आई वुड लव टू अंडरस्टैंड, अगर आप लोगों को आइडिया है कि आपकी प्रोफाइल क्या है, और अगर आप आपकी सैलरी रेंज अगर बता पाओगे, जो लोग कंफर्टेबल है बताने के लिए बता दो, कोई लोड नहीं है। सो लेडीज फर्स्ट, Shreya ma'am, please go ahead. Tell us something about your bank, your profile, and what you will be, doing over a period of time. Yeah, sure. So basically, IDBI has recently commercialized, so that is why they Hmm. have, started up taking more towards sales roles. Hmm. And Hmm. as far as we know that our job is related something to sales, but हमें एक clear description नहीं मिला है उस job के बारे में. Hmm. Apart from that, our salary is 12 plus variable. So the variable will vary, and it Hmm. also varies based on which state we have been located. So अभी तक वो भी fixed नहीं है हमारा. Hmm. Secondly, what I liked about IDBI is the moment we had our interview, the people there were very much telling us about the pros of joining IDBI and how it can enhance our future journey as a professional. Yeah. Okay, fantastic. But joining IDBI, इतना बड़ा brand, and joining as an assistant manager is a big thing, to be very honest. हाँ, variable तुमको तगड़ा मिल जाएगा, no doubt about it. But I think मुझे CTC wise better लग रहा है. Looking at the, at what percentile we are getting into B school and the tier of the B school, I think you are still in a safe zone. So good है, cool है. I'll go to Rishabh. Federal Bank. Federal Bank है, मोटा मोटी रेंज 13, 14, 15, 16 तक होता है. वो भी डिपेंड करेगा तेरा वेरिएबल क्या है, एचआरए क्या है. बट अगेन अनदर गुड ब्रांड यार. क्या प्रोफाइल होगी आपकी फेडरल में, ऋषभ? So actually, my profile is sales and client acquisition. All right. So recently, what happened that they are hiring for marketing. All right. So before Okay. 1 year back, they are hiring for finance students. So the main objective was for operation and all. But recently, they are increasing the new MD of Federal and KBS Money, and he's looking to increase the CASA acquisition. So now they are more focused on sales and all. So that's why. So my profile is going to be sales, नॉट and बैड यार, I सेल्स think 60% sales and 40% operation. गुड ना. अगर बैंक तुम्हारा अग्रेसिव है, अगर वो आगे जाके ग्रो करता है, तो तुम्हारा डिमांड भी मार्केट में बढ़ेगा. जैसे जब केवी कामत सर ने चालू किया था आईसीआईसीआई बैंक को तब इतना लोग जानते नहीं थे. सो दिस गाय मेड आईसीआईसीआई बैंक व्हाट आईसीआईसीआई बैंक इज टुडे, एंड ही सेड कि भाई बैंक को ना एक एफएमसीजी का रूप दिया जाएगा, एंड ही वाज अ पायोनियर. अभी तो बहुत सारे लोग कॉपी करते हैं आईसीआईसीआई का मॉडल. सो केवी कामत सर केम अप विथ बैंकिंग इंडस्ट्री पूरा एफएमसीजी का बना दिया. सेल 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 सेल, बाद में इतना आईसीआईसीआई ग्रो किया, एंड जो लोग आईसीआईसीआई छोड़ के बाकी कंपनीज में जाते थे, बैंक्स में जाते थे, मुंह मांगा सैलरी मिलता था लोगों को. तो आई थिंक दैट कैन बी अ गुड पॉइंट. बट अगेन थैंक्स फॉर मेंशनिंग दैट. फेडरल, आईडीबीआई, एट जयदीप, आरके, आरएम, व्हाट इज दिस कंपनी ऑल अबाउट? आपका प्रोफाइल क्या होगा, थोड़ा वो बता देना. So hi guys, basically I'm from RKRM. So मेरे को बहुत पहले से इंटरेस्ट था कि FMCG सेक्टर मिले या FMCD. So luckily I got FMCD sector. So we cater around blades, trimmers, hair dryers, and all sorts of grooming segments. So this is a very challenging things. I basically look after everything, like everything means sales, marketing, finance, and all. Because as I mentioned that this is a startup company, not a startup, a Lala company. So where we have to look on various aspects altogether, and there is no such hierarchy. It's a flat hierarchy. So I coordinate with my chairman, chairperson, CEOs, and directors as well. So we are currently in Mumbai, and this is all about me. Sorry, I can't disclose my salary on this podcast. No, that's But okay. then yeah, But well what said. do you do on a daily basis? Like, if you're talking to chairman, you are getting an access to the top management of the company, right? Yeah. Excuse me. I think छोटी कंपनी में काम करने का ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, that you get to sit and work along with the top people. तो अगेन लर्निंग वाइज अगर देखा जाए, सो लर्निंग बहुत कुछ मिल सकती है. उनका एक्सपीरियंस, उन लोगों ने कैसे कंपनीज खड़ी करी है, वगैरह वगैरह. सो यू कैन टेल मी तुम्हारे क्लाइंट्स कौन से होते हैं, क्लाइंट्स है भी नहीं है, व्हाट सॉर्ट ऑफ मार्केट यू गाइस आर केटरिंग. दैट विल बी अ रियली गुड टेक अवे फॉर स्टूडेंट्स. So I'm currently
working on a project with Gamma Plus. So Gamma Plus क्या कहते हैं, premium segments को अभी cater करते हैं. So my job is to onboard the clients, or what I say, onboard the premium salons of Pan India. So currently I have onboarded some premium salons such as Truefit and Hill and many more. So उनका ऐसा होता है कि they only cater to celebs. Those salons जहाँ पे सिर्फ celebrities आते हैं and उनके साथ ही वो अफोर्ड कर सकते हैं हमें. सो वी आर मार्केट सेगमेंट हमारा थोड़ा प्रीमियम नीश हो जाता है. सो हम उस टाइप के मार्केट सेगमेंट्स के साथ खेलते हैं, उन टाइप के सलॉन्स को अपने साथ कोलैबोरेट करते हैं टू गेट द बिगर ऑडियंस. ऑल्दो इट्स अ वेरी like the TG is very low in percentage, but then yeah, we find something very good stuffs in the market. Okay, fair enough. So guys, my next question will be, I know इस बारी market थोड़ा सा down है and lot of colleges tier 1, tier 2, tier 3 impact हुए हैं and you guys have made it to decent packages, good brands या फिर good profile like जैसे जयदीप का है. So wanted to understand कि now people who are getting into colleges like IMI Kolkata, right? What they should be doing, or rather what you guys did in these last 2 years to make it a point that कि भाई हमें एक decent profile मिले. I'm very sure जितने आपके पैकेजेस है, नॉट एवरीबडी मस्ट हैव गॉट दैट पैकेज. आपके पैकेजेस काफी अच्छे लेवल पे है लुकिंग एट द परसेंटाइल जो आपने करा एंड गॉट इनटू IMI कोलकाता एंड जो टियर है IMI कोलकाता. सो आई वांट टू अंडरस्टैंड इफ यू कैन गाइड स्टूडेंट्स कि देख भाई, आई मीन अगेन इन योर बैच आल्सो 190 में से 190 को इतने बड़े पैकेजेस नहीं मिले होंगे, कुछ कम होंगे कुछ ज्यादा होंगे. सो गिव देम सम बुलेट पॉइंट्स कि यार अगले 2 साल आप ये चीजें करो सो दैट इवन इन अ बैड मार्केट यू कैन गेट डिसेंट पैकेजेस फ्रॉम डिसेंट कॉलेज और IMI कोलकाता. श्रेया, if you can kickstart. Yeah, sure. So what I have noticed in this 2 years, and from my personal experience, was that being fundamental, your fundamentals should be very strong. I was very much passionate about marketing. So since childhood, my discussion with my dad was always, about markets and advertisements and everything, and that got me into this MBA thing. What followed was being continuous with, the market, what is going on, what is trending. Guerrilla marketing and so many these verses have come up कि ये करना चाहिए and वो करना चाहिए. So that is something which should come up from within कि I have to make my fundamentals very strong whether I am from marketing or finance. Second, which I would like to say, is being versatile, doing all sorts of activities right from co-curriculum to your own studies, and just not sticking up to the course outlines, just going some extra miles. There are certain events जो हम लोगों को आते थे, which we used to participate, and we used to get a lot of networking about people कि अच्छा ऐसा भी होता है ऐसा भी होता है. So that makes you stand out. The third point which I would like to say would be being very much confident about yourself. There are people who will think कि अरे यार मैं तो tier 3 कॉलेज से हूँ, क्या ही उखाड़ लूंगी, कुछ तो कर नहीं पाऊंगी. So that thing didn't, my sisters used to always tell me that never think like this. Always think that you are in one of the best colleges and you will do great. So that was one of the key point which I kept myself reminding, that even if I'm from a tier 3 college or something, I'll do something great for myself. So that never stopped me from grabbing up any kind of opportunities, whether it was in college, whether it was outside or anywhere. So yeah, so these 3 things I think anyone who is joining or will be joining can help them to stand out others. Perfect, yaar. Thank you so very much for being realistic and blunt about it. So again, as you mentioned कि खुद पे भरोसा होना बहुत जरूरी है, and ये वो लोग बोल पाते हैं जो जिनको रियलिटी चेक पता है, स्मार्ट बच्चे. This is again जितने भी बच्चे यहाँ पे सुन रहे हैं ना, ये देख रहे हैं वीडियो, एक चीज याद रखना, मैं ऑलवेज बच्चों को कहता हूँ, there are 2 things. Number 1, nobody gets their dream job on the camp. सबको मोटा मोटी एडजस्ट करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. But if you stay in the game, right, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद आपको आपकी ड्रीम जॉब मिलती है. You will grow the ladder up only when you have that confidence in you. And second thing is, even if you're from the tier 1 B school or a tier 2 whatever B school you're from, भाई अगर तुम में दम नहीं है तो तुम्हारा ब्रांड तुमको नहीं बचा पाए. सो आज की दुनिया में, मतलब अभी ये टॉपिक छेड़ा है तो मैं बात करूंगा, अगर हम 7-8 साल पहले चले ना मार्केट में, तो ब्रांड बहुत होता था. एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता था कि अच्छे कॉलेज से रख लेते, देख लेते काम करेगा कि नहीं, बाद में देख लेंगे. तो 6-7 महीने का तुमको ना कूलिंग पीरियड मिल जाता था. अभी ऐसा हो गया ना कि मार्केट बोलता है कि भाई मुझे फर्क क्यों नहीं पड़ता तू कौन से कॉलेज से, मुझे देखना है कि तू कितना फोड़ता है. एंड अगेन देयर आर कंपनीज, आई आल्सो स्पोक टू IMI भुवनेश्वर के बच्चा लोग, RCCM कंपनी
कैंपस पे आती है, आईडीबीआई आपके यहाँ पे आ रही है, फेडरल आपके यहाँ पे आ रही है. सो आई थिंक दिस थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो एज राइटली सेड बाय श्रेया कि हाँ भाई खुद पे भरोसा रखो एंड मेहनत करो, तभी जाके आपका काम बनेगा. ऋषभ, व्हाट पीस ऑफ एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू द स्टूडेंट्स? All right. So my advice will be very simple. Actually, I will say that this was my third company. All right. So I in Huh. all beside of that, in the earlier two companies, I was rejected in final round. So I will honestly say that you should try to boost your confidence, and you should focus on your aptitude more. So you can make sure that you should not be rejected in first or second round. All right. You will get your chance. And and second thing, I will say, my teacher used to say that when I was getting in IMI Kolkata, basically I never heard of the name of IMI Kolkata in the big. My sir said to me that what is the highest package of your college? मैंने कहा यार 15-16 होगा, कुछ पता नहीं मेरे को. सर ने कहा लोग कॉन्फिडेंस रख, अगर 15-16 है तो वेट ग्रैब करने की कोशिश कर. अगर तेरे को खुद सही पे बात इतना है. कॉन्फिडेंस नहीं कि तू वहां पर जाके 15-16 नहीं निकाल पाएगा, तो फिर क्यों एक साल तेरे को बर्बाद और करना है अपना. सही बात है. So I'll say you should be more focused on aptitude and your communication skill as well, and the confidence you should try to build up, and the basic concept. वो कुछ ऐसा हुआ ऐसा नहीं पूछते इंटरव्यू में, जो हमें स्टार्टिंग में जब हम जूनियर थे तो हमें लगता था, लेकिन बहुत क्या बड़ा चल रहा है कुछ तो. बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं. मेरा जो इंटरव्यू था फेडरल का, टोटली एचआर इंटरव्यू. ऑलराइट, दे वाज चेकिंग माय पर्सनालिटी. कोई जार्गन नहीं पूछा था उन्होंने, बैंकिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा था. बस आखिर में जाके एक क्वेश्चन पूछा था, जब मैं उनका बिजनेस थोड़ा सा सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो मैंने कहा था कि यार मुझे सर मैंने फोकस नहीं कर पाया इसके ऊपर, मैं मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहा था उसी टाइम पे. मॉनेटरी पॉलिसी आई थी तो उन्होंने मेरे से वो पूछा, तो मैंने पूरा उन्हें बता दिया था. तो आई नो कि हो गया, चल अब तो कोई दिक्कत आ रही है. थैंक्स यार, थैंक्स फॉर बीइंग कैंडिड यार, काफी दिल से आंसर था तेरा. जयदीप भाई, अब मैं क्या ही बोलूं, मेरे दो फेलो मेट्स ने सारे पॉइंट्स कवर अप कर दिए. बट देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई लाइक टू हाईलाइट इज दैट ग्रैब द एक्सपीरियंस. व्हाई आई एम सेइंग दैट, क्योंकि मैंने जब इस टेन्योर में जब मैं आ रहा था या कर रहा था, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था, सो आई हैव डन 4 to 5 लाइव प्रोजेक्ट्स अपार्ट फ्रॉम माय समर इंटर्नशिप. सो माय समर इंटर्नशिप वाज इन आईसीआईसीआई बैंक. सो उसके बाद मैंने और भी बाहर मार्केट में एक्सप्लोर करना चालू किया. जितने अपॉर्चुनिटीज आए मैंने उसको ग्रैब किया. तो कभी ये नहीं सोचा कि ये अपॉर्चुनिटी क्या है, छोटा है बड़ा है, कुछ नहीं है. इट्स लाइक मोर एक्सेप्ट दैट ऑफर एंड जस्ट वर्क. एक्सपीरियंस लो, नहीं मिलता पेमेंट स्टाइपेंड नहीं मिलता, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस तो मिल रहा है. सो गेट योर एक्सपीरियंस डन सो दैट यू कैन हैव समथिंग टू टॉक इन द इंटरव्यू. क्योंकि जहाँ पे जब एचआर हमसे बात करते हैं ना, दे रियली डोंट थिंक और मोर फोकस अपॉन टेक्निकल कि भाई तेरे को कितना पता है, तूने कितना पढ़ा है. वो ये जानना चाहते तूने क्या एक्सपीरियंस तू लेके मेरे साथ टेबल पे बैठा है, क्या पर्सनालिटी तू लेके मेरे से बात कर रहा है, हाउ यू कैरी योरसेल्फ, हाउ यू ड्राइव द whole interview. During my interview, I have driven my whole interview by myself, by the numbers which I have gained in my internship. जितना revenue मैंने collect किया, जितना कम profitability दिखाया, उस numbers पे बात किया. जब मुझे लगा कि थोड़ा सा off the beat जा रहा है, then I dragged up the interview and I stood myself. मैंने board में कुछ flow charts ये सब explain किया. They like the way how I carried the whole interview procedure. So उनको वो बहुत interesting लगा कि हाँ ये बंदा moldable है, ये बंदा flexible है. He can be into our business and can take our business to a next level, because वो creativity, वो passionate, वो चीजें दिखाती है आपके way of gestures में कि आप कैसे अपने आप को present कर रहे हो सामने. So that's all my guys. Please focus on experiences, and कोई चीज छोटा बड़ा नहीं होता. Grab the opportunity, learn the basics out of it so that you can have something to talk in the end. Perfect. And how was your experience, guys, over a period of time? I am at Kolkata. How it has been? Amazing. इतने अच्छे दोस्त मिले. ऐसा था कि हम वहाँ पे 24 घंटे साथ में ही थे. 24 घंटे सब साथ में ही थे, तो कुछ भी प्रॉब्लम होता थे तो हम सब एक दूसरे को रीच आउट कर सकते थे. इवन यू नो ऋषभ वाज माय फ्लैटमेट, रूममेट बेसिक. सो हम साथ में रहते थे. या लिटरली हम लोग दोनों साथ में रहते थे एंड वी यूज्ड टू डिस्कस कि भाई आज तेरा क्या लगा, ये अपॉर्चुनिटी है, ये चल रहा है, पता इसका ये चला वो चला. सो देयर वर हेल लॉट ऑफ गॉसिप्स आउट देयर. बहुत मजा आता था. और हम रात में तो वो होते ना रात के उल्लू, तो हम रात भर जागते थे. हम रात भर हम क्रेजी शिट्स बातें करते थे और वी एंजॉयड अ लॉट ऑफ दैट हॉस्टल डेज. आई यूज्ड टू मिस दोस डेज. बट देन वो एक you know, था. एक चीज याद आई यहाँ पे. बहुत सारे बच्चे मैसेज करके बताते हैं, we've been there, we've done that. प्लेसमेंट सब कुछ होने के बाद ना पता चलता है भाई सब अभी प्लेसमेंट हो गया, अभी कॉलेज भी खत्म होने आया, सब कुछ हो गया. तो फिर थोड़ी ये जो यादें होती है ना, वो थोड़ी ताजा हो जाती है कि इस कॉलेज में हमने क्या क्या मस्ती करी, क्या क्या कांड करे, वगैरह वगैरह वगैरह. आई नो प्लेसमेंट बहुत मैटर करता है, बट बहुत सारे बच्चे जैसे तूने कहा ना कि जिसकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं लगती है ना, वो कहते हैं कि नहीं यार मेरे दोस्त अच्छे बने. किसी को प्लेसमेंट ठीक ठाक मिलती है, वो कहते हैं नहीं यार मेरे को यहाँ पे मेरा लाइफ पार्टनर मिल गया. तो ऐसा
ऐसा नहीं है कि इट्स जस्ट अ प्लेसमेंट, इज प्लेसमेंट प्लस वन इन योर बी स्कूल। तो ये चीजें इवेंचुअली समझ में आएगी आपको। अभी आप अगर एमबीए में जा रहे हो ये वीडियो देख के, ये शायद से आपको बाउंसर होगा, बट ये लोग बता सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट लिटरली श्रेया जो डांस मूव्स दिखाती थी, दैट वाज अमेजिंग। तो अरे श्रेया यार। वाज रॉकिंग इन द स्टेज में, श्रेया लीड द स्टेज, शी वाज अ रॉक स्टार इन द स्टेज। सो वी यूज्ड टू गो श्रेया, कैसा एंड नहीं बोल रहा है? थैंक यू सो मच। तूने आज इतना तारीफ किया मेरा, उस दिन कर दिया होता। देख यार। चलो बढ़िया है। दिस इज सो कूल यार, दिस इज सो कूल, सो परफेक्ट यार। थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग सम टाइम यार। ऐसे ही हंसते खेलते रहो लाइफ में, एंड बड़ा खेला होता है जिंदगी। एंजॉय करते रहो, एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सम टाइम। थैंक यू। thank you for bringing us into one again. This is a reunion sort of something, but yeah, we love it, guys. सब Thanks, man, thanks. सीखो यार, करो breakout करो, You guys should enjoy connect. You both should connect. चलो, bye bye, take care guys, bye bye.